हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से चौका नंबर 6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the top of a bigger block of mass 10 m as shown in the figure. All the surfaces are frictionless. The system is released from rest. Find the distance moved by the bigger block at instant of smaller block reaches the ground. 0.30 meter, 0.25 meter, 0.20 meter, 0.40 meter. A car of mass m is moving with uniform velocity v on a horizontal road when a man of mass small m drops himself on it from the above. What will be the velocity of the car after the event? V capital M by small m, capital M V upon small m plus capital M, small m V upon small m plus capital M. Question number 3. A man of mass small m is standing on a platform of mass capital M on smooth ice. If the man starts moving on the platform with a speed v relative to the platform, with what velocity relative to the ice does the platform recoil? mv upon capital M, mv upon m plus capital M, capital mv upon m plus capital M, capital mv upon small m. Question number 4. A ball of mass m moving with a velocity v along x-axis strikes along ball of mass 2m kept at rest. The first ball comes to rest after collision and the other breaks into two equal pieces. One of the pieces starts moving along y-axis with a speed of v1. What will be the velocity of the other piece? v1 root v square upon v1 square root v square minus v1 square. Now solution. Question number 1. A block of mass m is placed on a top of bigger block of mass 10 m as shown in the figure. All the surfaces are frictionless. The system is released from rest. Find the distance moved by the bigger block at instant the smaller block reaches the ground. 0.3 meter, 0.25 meter, 0.20 meter, 0.4 मीटर. अगर हम सिस्टम ऑफ m और 10m देखें तो इस पर जो m का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और 10m का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और रिएक्शन ऑफ द फ्लोर विल एक्ट नॉर्मली अपवर्ड. इट मीन्स जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दे आर इन वर्टिकल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए जो हॉरिजॉन्टली सिचुएशन होगी सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स इट विल नॉट चेंज. एक ब्लॉक दिस इज m, ये सपोज x and y axis, x axis, y axis. जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ m का जो x1 होगा हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट दैट विल बी 2.20 मीटर और इसका जो x2 होगा 10m का 2/3 इंटू 2.2 4.4/3 मीटर फ्रॉम हियर. x coordinate will be m1 x1 plus m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. इस कंडीशन में होगा m1 m इंटू 2.2 प्लस 10m इंटू 4.4/3 अपॉन 11m.
अब ये टॉप जो m रखा है वो बॉटम पर आ जाता है। सपोज ये जो हमारा 10m का ब्लॉक है, ये डिस्टेंस x मूव कर जाता है। दिस इज x। सपोज पहला दिस x is somewhere at point A, इसका कोऑर्डिनेट x। जो ये 10m का यहाँ पर आ जाता है और इसका जो CG होगा that will be from here 2/3 into 2.2 और 4.4/3 मीटर। तो इस कंडीशन में जो m के लिए x1 होगा दैट इज x और 10m के लिए x होगा x प्लस x2 जो होगा x प्लस 4.4/3 बाई 11m। 11m से 11m क्रॉस हो गया, m इंटू 2.2 प्लस 10m इंटू 4.4/3 इज इक्वल टू mx प्लस 10mx प्लस 10m इंटू 4.4/3। दिस इज द सेम, क्रॉस हो गया तो m इंटू 2.2 इज इक्वल टू 11 mx और m से m क्रॉस हो गया, x इज 2.2/11, दिस कम्स 0.20 मीटर। जो मूवमेंट होगा दैट इज 0.20 मीटर। C इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, a car of mass m is moving with uniform velocity v on the horizontal road. When a man of mass m drops himself on it from above, what will be the velocity of the car after the event? V, capital M V upon small m, capital M V upon m plus capital M, small m V upon small m plus capital M। एक कार है, ये हॉरिजॉन्टली v स्पीड से मूव कर रही है और इसका मास m है, कैपिटल M। तो इनिशियल linear momentum in horizontal direction is mv. Now a man drops himself from above, ये ऊपर की डायरेक्शन से एक मैन ड्रॉप होता है। तो ये कंबाइंड मास हो जाता है m प्लस m। सपोज अब हॉरिजॉन्टल स्पीड बिकम्स v1। जो सिस्टम है m प्लस m का, उस पर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। इट मीन्स जो फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल इनिशियल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो pf इज इक्वल टू pi, तो m प्लस कैपिटल M v1 इज इक्वल टू mv और v1 इज mv बाई m प्लस m, mv बाई m प्लस m। C is correct option. Question number 3, a man of mass small m is standing on a platform of mass capital M on smooth ice. If the man starts moving on the platform with v relative to the platform, with what
velocity relative to the ice does the platform recoil? mv by m, mv by m plus m, mv by m plus m, mv by m. एक आइस इस पर एक प्लेटफॉर्म रखा है, इसका मास, प्लेटफॉर्म का मास इस कैपिटल एम, इस पर एक आदमी मास ऑफ स्मॉल एम खड़ा है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम बोथ आर इन रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम विल बी 0. Now this man begins to move in this direction v with respect to this platform. सपोज ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से रिकॉयल करता है। वेलोसिटी ऑफ man with respect to ice, this is suppose v1, ये होगा वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v। और अगर मैग्नीट्यूड देखें तो v1 होगा v माइनस v, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब फाइनल लीनियर मोमेंट ऑफ द सिस्टम, जो v माइनस v वेलोसिटी से ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है और ये v वेलोसिटी से राइट टू लेफ़्ट। तो अगर राइट टू लेफ़्ट को हम पॉजिटिव लें, लेफ़्ट टू राइट को, तो मोमेंटम ऑफ मैन विल बी v माइनस v एंड मोमेंटम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म विल बी in minus direction v, that is 0 initial momentum. तो mv minus m capital V minus mv is equal to 0, और mv is equal to mv plus capital mv, v कॉमन m प्लस m, तो v की वैल्यू आ जाती है स्मॉल m अपॉन v अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल एम v। दिस B is correct option. Question number 4. A ball of mass m moving with velocity v along x-axis strikes along another ball of mass 2m kept at rest. The first ball comes to rest after collision and the other breaks into two equal pieces. One of the pieces starts moving along y-axis with a speed v1. What will be the velocity of the other piece? v1 root v square plus v1 square under root v square minus v1 square. This is horizontal in the x-axis. x-axis के along एक m मास
बॉल v वेलोसिटी से मूव कर रही है। m मास है और v इज वेलोसिटी। तो इसका अगर हम px से डिनोट करें और along this x axis, the moment of linear momentum of this ball will be px mv, and in y direction this is 0। अब ये दूसरी बॉल से टकराती है और ये दिस बॉल्स कम्स टू रेस्ट। तो दूसरी बॉल जो 2m की है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वल में, और एक पार्ट y डायरेक्शन में v1 स्पीड से मूव करता है। सपोज दिस इज इसकी v along y एक्सिस, मास m। तो जो इनिशियल मोमेंटम है इन y डायरेक्शन दैट इज 0, एंड px जो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस में है वो है mv। तो जो थर्ड पार्ट इस तरह से मूव करेगा कि उसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम y डायरेक्शन में mv1 के अपोजिट हो, और जो x डायरेक्शन में उसका मोमेंटम हो वो जो है along x डायरेक्शन mv हो। तो दिस विल मूव एट एन एंगल थीटा, this theta, suppose this move with v speed। इसका जो दो कंपोनेंट होंगे मोमेंटम के, mv मोमेंटम होगा, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज mv कोस थीटा, और y डायरेक्शन में होगा mv साइन थीटा। तो दिस mv कोस थीटा मस्ट बी इनिशियल px के इक्वल होना चाहिए। तो mv कोस थीटा इज इक्वल टू m स्मॉल v, m से m क्रॉस हो गया, तो v कोस थीटा इज इक्वल टू v। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो mv साइन थीटा विल बी अपोजिट एंड इक्वल टू mv1। तो mv साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mv1। तो v साइन थीटा इज इक्वल टू v1। इक्वेशन नंबर 2 में v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इक्वेशन 1 का और 2 का स्क्वायर ऐड कर दें। 2 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस v साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, और v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। दिस इज 1, तो v आ जाता है रूट v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। C is correct option।